Hello everyone, welcome you all in class 11 geography. This is chapter number 6 soils, as you know that we are discussing, and this is the module number 7. Today we are going to discuss about the saline soil. We have already discussed about alluvial soil, black soil, red and yellow soil, laterite soil, arid soil and peat soil. So today in the module number 7 we are going to discuss about the saline soil. So let's discuss. First of all, you can see in the given picture the texture of this kind of soil. Then we will see the location of the area or the located area of the saline soil. Location. Saline soil are widespread in western Rajasthan, delta of eastern coast and in Sundarban area of West Bengal. It can also be seen in the area of Punjab and Haryana for excessive groundwater irrigation. So basically saline soil found in those area where there is a availability of water in excess form. So as you can see, western Gujarat is a coastal area, तो वहाँ पर भी water ज़्यादा है. डेल्टाज ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, ऑब्वियसली जो कोस्टल एरिया है और डेल्टा है तो वाटर एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा होगी. सुंदरबन एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, सुंदरबन इज़ ऑल्सो अ डेल्टा. एंड पंजाब एंड हरियाणा फॉर एक्सेसिव ग्राउंड वाटर इरीगेशन, यानी पंजाब और हरियाणा के वो एरिया जहाँ ग्राउंड वाटर को इरीगेशन के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उन एरिया में सलाइन सॉइल का डेवलपमेंट हुआ है. सो बेसिकली सलाइन, सैलिनिटी मीन्स सॉल्ट. सो जिस सॉइल के अंदर सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होगा, दैट सॉइल इज़ कॉल्ड एज सलाइन सॉइल. सो दीज एरिया हैव एक्सेसिव salt in their soil, that's why there is a formation of saline soil. So you can see the picture and the formation of salt on the surface, or we can say the top surface of the soil. in pictures में आप देख रहे हैं कि soil के ऊपर whitish एक layer आपको दिखाई दे रही है. this is a salt layer, and due to this salt layer there is a less availability of organic matter. When there is a less availability of organic matter, there is no humus, so it means this kind of soil become barren and this is not fruitful for any kind of cultivation and plantation. यानी सॉल्ट की एक लेयर की वजह से सॉइल बैरन बन जाती है, अनफर्टाइल बन जाती है, जो किसी भी तरीके से प्लांटेशन या क्रॉपिंग के लिए यूज़फुल नहीं रहती. Now we will see the characteristics of this soil. These are also known as Usar soil. So when we did the division or the different classification of soil, so we classified soil on ancient form Usar and Urvar, where I explained you Usar mean unfertile and Urvara means fertile. So this is also known as Usar, as I explain you, because जब soil के ऊपर एक salt की layer spread हो जाती है, the soil become unfertile, barren, and or we can say Usar. That's why it's known as Usar soil. Saline soil contain a large proportion of sodium, potassium and magnesium. So sodium, potassium, magnesium, these are the salt content, and thus they are अनफर्टाइल एंड डू नॉट सपोर्ट एनी वेजिटेशन ग्रोथ, क्योंकि इनकी सॉइल पर सॉल्ट कंटेंट की एक लेयर स्प्रेड हो जाती है, जिसलिए किसी भी काइंड के वेजिटेशन ग्रोथ के लिए सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते. एज यू कैन सी इन द गिवन पिक्चर और डायग्राम ऑल्सो, लिमिटेड अमाउंट ऑफ रेनफॉल विच हेल्प डिजॉल्व accumulate salts in the root zone or wash them down to the soil प्रोफाइल. सो धीरे धीरे यहाँ पर सॉल्ट के क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगते हैं, जो इसके पोर्स में एग्जिस्ट हो जाते हैं और किसी भी काइंड के वेजिटेशन डेवलपमेंट को ग्रोथ नहीं करने देते. They have more salt largely because of dry climate. So you just saw in the diagram कि लिमिटेड वाटर की एग्जिस्टेंस की वजह से, यानी ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा एग्जिस्ट होता है. एंड पुअर ड्रेनेज, दे अकर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन. सो राजस्थान एंड
गुजरात के एरिड और सेमी एरिड रीजन में इस टाइम की जो सॉइल है, सॉल्ट सॉइल है, वो इस वजह से फॉर्म होती है। एंड इन वाटर लॉक्ड एंड स्वाम्पी एरिया, पंजाब हरियाणा जो वाटर लॉक्ड और स्वाम्पी एरियाज, इन दलदली एरियाज हैं जैसे सुंदरबन डेल्टा एरिया, वाटर लॉक्ड एरियाज है पंजाब हरियाणा ड्यू टू द ओवर इरिगेशन, एंड एरिड और सेमी एरिड रीजन है गुजरात और राजस्थान। देयर स्ट्रक्चर रेंज फ्रॉम सैंडी टू लोमी। अगर हम सॉइल के टेक्सचर की बात करें सो इनका स्ट्रक्चर सैंडी से लोमी की फॉर्म में चेंज होता है, यानी कि इनका जो ग्रेन साइज है वो सैंडी से लेकर स्मॉल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में लोमी तक फॉर्म करता है। दे लैक इन नाइट्रोजन एंड कैल्शियम, एज एक्सप्लेन यू, नाइट्रोजन बिकॉज जब ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं होगा सो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस नहीं होगा, और जब नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा तो नाइट्रोजन के कंटेंट भी नहीं होंगे, एंड कैल्शियम। इन द रन ऑफ कच्छ मीन्स इन गुजरात द सदर्न वेस्ट मानसून ब्रिंग सॉल्ट पार्टिकल, यानी साउथ वेस्ट मानसून है जो इंडियन ओशन की साइड से आता है वो सॉल्ट पार्टिकल्स लेके आता है, एंड डिपोजिट देयर एज अ क्रस्ट, और एक क्रस्ट की तरह, जैसे अर्थ की अपर लेयर क्रस्ट है ऐसे ही पूरी सरफेस पर एक क्रस्ट की तरह इनको स्प्रेड कर देता है। सी वाटर इंट्रूशन इन द डेल्टा प्रमोट द अकरेंस ऑफ सेलाइन सॉइल, और जो अरेबियन सी का सी वाटर है, बिकॉज एज यू नो जितने भी सी या ओशंस हैं उन सबका वाटर सेलाइन वाटर होता है, सो दैट्स वाई दिस अकरेंस ऑफ सेलाइन वाटर in the area of intensive cultivation with excessive use of irrigation, especially in the area of green revolution. So green revolution, सबसे पहले green revolution has been started from हरियाणा and पंजाब, हरियाणा और पंजाब से ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, यानी कि जहाँ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ होते हैं और जहाँ इरिगेशन एक्सेसिव फॉर्म में होता है उन एरियाज़ में भी सॉल्ट या सलाइन सॉइल का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट ज़्यादा है। द फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल आर बिकमिंग saline, यानी कि in those area where there is a excessive use of irrigation and the use of modern farming method, the soil fertile, or we can say the fertile soil now transforming into the saline soil, यानी ज़्यादा irrigation की वजह से fertile soil भी अब धीरे धीरे saline soil में convert होती जा रही है। Excessive irrigation with dry climate condition promote capillary action which result in the deposition of the salt on the top layer of the soil. जिन एरियाज़ में ड्राई क्लाइमेट है, अब जहाँ ड्राई क्लाइमेट होगा वहाँ रेनफॉल यानी रेन की अवेलेबिलिटी कम होगी, और जहाँ रेन अवेलेबिलिटी कम होगी यानी वाटर कम होगा वहाँ हम 3 क्रॉपिंग पैटर्न नहीं ले सकते। अगर हमें 3 क्रॉपिंग पैटर्न लेना है देन वी हैव टू यूज़ द इरिगेशन फैसिलिटी, हमें इरिगेशन फैसिलिटी को यूज़ करना पड़ेगा, एंड व्हेन वी यूज़ एक्सेसिवली इरिगेशन फैसिलिटी देन देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ कैपिलरी एक्शन, तब कैपिलरी जो सिस्टम है कैपिलरी एक्शन वो प्रमोट्स होगा, और उसकी वजह से जो लोअर स्ट्रेटा या लोअर हॉरिजन्स में सॉइल के लोअर हॉरिजन में जो कैल्शियम कंटेंट है या मैग्नीशियम कंटेंट है वो धीरे धीरे सॉइल की सरफेस पर आने लग जाएंगे, और वाटर तो ड्राई अप हो जाएगा ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, और अपर सरफेस पे सॉइल की एक लेयर स्प्रेड हो जाएगी। दैट इज़ द मेन कॉज फॉर द saline soil in the over irrigated area like Punjab and Haryana. So in such area, especially in Punjab and Haryana, farmer are advised, the important term, farmer are advised to add or put gypsum to solve the problem of salinity in this soil. यानी salinity की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फार्मर को एडवाइस किया जाता है कि वो सॉइल में जिप्सम को ऐड करें, इनपुट करें। थैंक यू।